Today we will be studying about chapter 12, Delhi in 1857. It was written at the time when there was loot and plunder and Britishers were overtaking. जब जो 1857 की जब क्रांति जो विफल हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पुलिस वालों और सबको खुली छूट दे दी थी कि आप लूटो. तो उस टाइम मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आत्मकथा में उस स्थिति का वर्णन किया है. And he has told about the circumstances, about the situations he was facing in his life, and today we will be studying about it. Now he is saying, I marvel at the varied wonders of fate in the days of killing and looting, when it seemed that every house in the city was emptied even of its dust. My house escaped the looter's grasping hand. Means पूरी तरीके से क्या है, लूटना और किल करना चल रहा था और पूरी चीज़ें चोरी हो जा रही थी. Yet I swear even so that nothing but clothes to wear and bedding to sleep was left to me. उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, बस क्लोथ्स एंड बेडिंग को छोड़ के. The answer to the riddle and the key to this false coming truth is that at that time when the black rebels seized the city, my wife without telling me gathered her jewels and valuables and sent them secretly to the house of काले साहब. तो उनके पास सिर्फ क्या बचे थे, क्लोथ्स बचे थे और बेडिंग बची थी, और उनके यहाँ की जितनी ज्वेलरी थी उनकी वाइफ ने एक काले साहब कोई थे उनको दे दिया था. they were stored in the cellar. एक तहखाने टाइप का होता था पुराने ज़माने में, जिसमें लोग अपने कीमती सामान रख के उसको बंद कर देते थे सीमेंट और उससे. They were stored in the cellar and the door of the cellar was blocked up with clay and smooth over. When the British soldiers took the city and were given leave to loot and kill, my wife revealed this secret to me. Now there was nothing to be done. जब ब्रिटिशर्स सोल्जर्स लोग आ रहे थे तो इनकी वाइफ ने बताया कि मैंने तो पहले ही काले साहब के यहाँ अपनी ज्वेलरी और सब चीज़ रख दी है, अब हम इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था. Nothing there was to be done. To go there and bring them back was impossible. I said nothing but and confronted myself with the thought that we were destined to lose these things and that it was well that they had not been taken from any home. And it is July 15th month and I see no sign that I shall again receive the pension which the British government formally granted me. और अब ये बोल रहे हैं कि 15वां महीना हो रहा है और मुझे जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन मुझे नहीं मिल रही है. I sell the clothes and bedding to keep the body and soul together. और मेरे पास जो कपड़े हैं इनके जो ये शायर थे, बहुत नामी शायर थे और मुग़ल कालीन उसमें थे, और इनको क्या है राजा महाराजाओं के यहाँ भी जाना आना रहता था इनका. तो इनके जितने भी कीमती कपड़े थे उसमें जड़ाऊ कपड़े थे, उसमें कीमती पत्थरों की नक्काशी थी, सोने चांदी की नक्काशी थी. तो इनको क्या है गरीबी में अपने कपड़े बेच कर अपना भरण पोषण पूरा करना पड़ता था, क्योंकि इनको पेंशन नहीं मिल रही थी और खाने पीने की भी इनके घर में लाले पड़े हुए थे. And now it is July the 15th month and I see no sign that I shall again receive the pension which the British government formally granted me. And so I sell the clothes and bedding to keep body and soul together. And a man might say that where clothes can eat bread, others eat bread, I eat clothes. तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोग ब्रेड खाते हैं और मैं क्लोथ खाता हूँ. तो क्लोथ खाता हूँ से ये मतलब नहीं है कि मैं कपड़े खाना चालू कर दी हूँ. इसका ये मतलब है कि मुझे कपड़े बेच कर अपना भरण पोषण पूरा करना पड़ रहा है. I go in fear that when all the cloth is eaten, I shall die naked and hungry. Of the servant who had long been with me, there are some who even in this tumult did not desert me. मेरे साथ बहुत सारे सर्वेंट्स रहते थे परंतु धीरे धीरे सब साथ छोड़ गए, परंतु अभी भी कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ इस गरीबी में भी मेरा साथ नहीं छोड़े हुए हैं और वे पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट में हैं. These two I must feed, not for in truth man may not turn his back on man and I too need them to serve my needs. परंतु अब मुझे अपने साथ साथ इनका भी भरण पोषण करना पड़ता है.
और मैं उनसे पीठ नहीं मोड़ सकता, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया है तो मुझे भी इनका साथ देना पड़ेगा. Beside these are those suppliants who in former days laid claim a share in the gleanings of my harvest. इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं, जब मैं सक्षम था तो वो लोग मेरे घर आना जाना था और मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, तो अभी भी वो क्या है, मेरे ही ऊपर डिपेंडेंट हैं. Even in these bad times they cry to me, and their cry, more unwelcome than the cock's untimely crow, pierces my heart and adds to my desires. उनका कहना है कि और इस बुरे दौरान में जब वो मुझसे कुछ याचना करते हैं या कुछ मुझसे मांगते हैं, तो मुझे उसी तरीके से बुरा लगता है जैसे कॉक जो है, मुर्गा अगर अपने टाइम पे बांग दे तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या है, बे टाइम अगर वो बांग देने लगे तो उसकी जो बांग है वो अच्छी नहीं लगती. उसी तरीके से मैं उनको हेल्प नहीं कर पाता हूँ, तो हेल्प नहीं कर पाने के मारे क्या है, हेल्पलेस हो जाने के मारे मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है. And now that these raging sickness and sorrows which suppress my body and soul have supplied to support my strength and spirit, the thought comes suddenly to my mind, how long can I occupy myself adoring this toy I call a book. तो उनका ये कहना है कि अब मेरी बॉडी, मेरी सोल सब मेरा साथ छोड़ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा इस पीड़ा से परेशान हूँ, और मुझे ये नहीं मालूम है कब तक मैं इस पीड़ा को झेल पाऊँगा. और अभी मैं बुक लिख रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान बुक लिखने में बटा हुआ है, परंतु मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि कब तक के मैं अपना मन बहला पाऊँगा और कब तक के इस डिस्ट्रेस को, इस ट्रबल को, इस गरीबी को, इस प्रताड़ना को मैं सहन कर पाऊँगा. For this distress much and either in death or in beggary. उनका ये कहना है कि ये जो प्रताड़ना है वो तभी खत्म होगी, या तो मैं बेगर बन जाऊंगा या फिर मेरी डेथ हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा. In first case the tale must needs for ever more lack of ending and so sadden its reader's heart. तो जो मैं बुक लिख रहा हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या है, मेरे रीडर्स बिना एंडिंग के ये बुक पढ़ेंगे. And in the second case, one clear outcome is that I must raise to beggar's cry from door to door, here gathering a crumb, there driven with abuse from lane and humiliated in the open street. और दूसरे उसमें यदि मैं बेगर बन गया तो मुझे डोर टू डोर जाना पड़ेगा और मुझे जिल्लत सहनी पड़ेगी, एक लेन से दूसरी लेन दूसरों से खाना और पैसा मांगते हुए. एंड फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई फील सच अ टेल माई सेल्फ स्प्रेडिंग द फ्रेम ऑफ माई डिसग्रेस. और किस तरीके से क्या है कि अपने बारे में मैं क्या लिखूँगा कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मैं बेगर बन गया, तो ये क्या है, बहुत डिस्ग्रेस होगा. नाउ इवन इफ माई पेंशन इज रिस्टोर्ड इट कैन नॉट वाइप क्लीन द मिरर ऑफ माई हार्ट, एंड इफ इट इज़ नॉट दैट मिरर विल इटसेल्फ बी शैटर्ड टू सच ruined ones as I and must go and live in some strange land. From May of last year to July of this I haven't written what has befallen, and from 1st of August I shall stay my pen. तो उनका ये कहना है कि अगर मुझे मेरी पेंशन रिटेन हो भी जाती है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो मेरे आत्मा में जो चोट पहुंची इन सब इंसिडेंट से वो कभी वाइप ऑफ नहीं हो पाएगी. और लास्ट ईयर के मई से अभी तक के मैं क्या है, अपने जो भी आत्मकथा है लिख रहा हूँ, लेकिन 1 अगस्त से मैं ये भी लिखना बंद कर दूँगा. तो ये छोटी सी एक चैप्टर है और उनके आत्मकथा के एक अंश से ली गया है, और उस समय की प्रताड़ना को इसमें दर्शाया गया है कि बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े शायर को उस समय किस तरीके से की दुर्गति का सामना करना पड़ रहा था. तो ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी मतलब अच्छा है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा.